Hello students. Today's method is exact differential equation. This is also a very important method in the GTU exams, right? So what is the exact differential equations? Let's see. Its theorem is the necessary and sufficient conditions for the differential equation. We know our differential equation is of the form of m of xy dx plus n of xy dy is equal to 0. To be exact, if del m upon del y, it is partial derivative, del m upon del y is equal to del n upon del x, right? Del n upon del y is equal to del n upon del x, where del m upon del y and del n upon del x denote the partial derivative of m and n with respect to y and x respectively. Okay, your differential equation is a exact differential equation if it is satisfy this condition, del m upon del y is equal to del n upon del x. Then only we can say that the exact differential equation is called a exact differential equation, right? Okay, so let's start with the method of the solution. There is a for 3 steps, right? 2 steps. So first we have to check the test the condition of the exactness of that equations. So first check del m upon del y, m of xy with respect to y and n of xy with respect to partial derivative with respect to x. If the conditions is become equal, right? If it is becoming equal, right, then we can say that differential equation is exact. And after satisfy these conditions, go to the next step. Next step is what? If the condition is satisfied, then the given differential equation is exact and its general solution. Which types of solution? General solution is given by, we have to follow this formula, integration of y constant m dx. यहाँ जो भी होगा वो क्या होगा? y constant होगा. Integration of y constant m dx plus integration terms in n which are independent of x. I repeat again, terms in n which are independent of x into dy is equal to c. यहाँ ऐसी टर्म्स होगी जो x जिसके मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा, डिवीजन में भी नहीं होगा, कोई तरह से किसी भी नहीं. ओनली एक्सपेक्ट वॉट एवर द फंक्शंस I will put here, we have to put here which are independent of, not in a multiplication, not in a division, right? That types of equation is called the independent of x. That types of equation, right? Okay, so ये फॉर्मूला हमें आफ्टर द कंडीशंस अप्लाई करनी होगी, राइट? तो हमें जनरल सॉल्यूशंस मिलेगा. हाँ, लेकिन एक चीज और सीखने जैसी है, वो हम लोग देखते हैं. यहाँ नोट है एक, राइट? नोट में क्या लिखा है? इफ द कंडीशन गिवन कंडीशन इन स्टेप 1 is not satisfied, that is del m upon del y is not equal to del n upon del x, then the given differential equation is called non-exact differential equation. What we can call non-exact differential equation. उसके लिए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट के लिए भी हमारे पास 3 और 4 मेथड है, विच वी विल अप्लाई इन अ नेक्स्ट वीडियो. हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट? तो पहले हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहते हैं, उसके एग्जांपल्स कैसे सॉल्व होते हैं, हम लोग वो देख लेते हैं, राइट? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जांपल देखेंगे. ओके, so let's start with the example. Okay, so our first example is x square minus 2xy plus 3y square into dx plus 4xy cube 4y cube plus 6xy minus x square into dy is equal to 0, राइट? ये एग्जांपल है. एक्चुअली अगर ये एग्जांपल हम लोग देखने जाए तो ये एग्जांपल कैसा होगा?
देखने पर तो पहले तो ये लगता है कि ये टाइप के एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ भी एक्स स्क्वायर पावर है, एक्स स्क्वायर पावर है, एक्स स्क्वायर, तो हम लोग उसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से भी प्रूव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक टर्म ऐसी है जो वाई क्यूब है, यहाँ 2 पावर है और यहाँ भी 2 पावर है, लेकिन यहाँ अकेले में 3 पावर है, राइट। तो ये तो होमोजेनियस से सॉल्व नहीं हो सकता है, राइट। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग ट्राई करते हैं, राइट। ओके, सो ये फर्स्ट टर्म हमारी होगी m और ये सेकंड टर्म होगी हमारी n, राइट। सो फर्स्ट टर्म को हम लोग किस विद रिस्पेक्ट टू सॉल्व करें। सो m इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू है 4y क्यूब माइनस प्लस 6xy माइनस एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट चेक डेल m अपन डेल y, ये जो पूरा इक्वेशन है उसे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू y करें तो ये तो पहली टर्म एक्स स्क्वायर है तो वो 0 हो जाएगी, बाकी टर्म में रही माइनस 2x और लास्ट में विद रिस्पेक्ट टू y है तो ये कितना होगा प्लस 6y, राइट। तो ये टोटल टर्म हम लोग समझ में आया पूरा। इन द सेम वे डेल n अपन डेल x, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना होगा, ये जो n है उसका विद रिस्पेक्ट टू x। सो फर्स्ट टर्म क्या होगा ये 0, सेकंड टर्म में क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x है तो बचेगी कौन 6y और माइनस 2x, राइट। अब आप लोगों को यू कैन सी हियर दैट द डेल m अपन डेल y एंड डेल n अपन डेल x आर बोथ आर इक्वल, राइट। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट की जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करता है, राइट। अगर सेटिस्फाइड करता है तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ y कांस्टेंट m dx प्लस टर्म इन n which are independent of x into dy is equal to c। सो इंटीग्रेशन ऑफ y कांस्टेंट है तो m dx के अंदर क्या होगा, फर्स्ट m जो वैल्यू है हमारी वही लिखनी होगी, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म इन n में ऐसी टर्म होनी चाहिए विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ये एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर x नहीं है। सो हम लोग लिख लेंगे कि 4y क्यूब dy इज इक्वल टू c। Again I will repeat कि टर्म इन n which are independent of x। सो n के अंदर ऐसी टर्म होनी चाहिए जो x से इंडिपेंडेंट हो, ना वो उस डिवीजन में हो ना वो मल्टीप्लिकेशन में हो, राइट। नॉट इन अ मल्टीप्लिकेशन, नॉट इन अ डिवीजन, राइट। सो ऐसी एक ही टर्म है, देयर इज ओनली वन टर्म दैट इज 4y क्यूब विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x। दैट टर्म इज आई एम राइटिंग हियर, राइट हियर, ओके। सो नाउ सॉल्व दिस इक्वेशंस, राइट। तो अगर सॉल्व करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई प्लस कितना होगा 3y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये कितना होगा 4 इंटू वाई रेज टू 4 अपन 4 इज इक्वल टू c, राइट। इसे हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 3 माइनस ये 2 कैंसल, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 4 कैंसल्स y रेज टू 4 इज इक्वल टू c, राइट। देखा कितनी इजी एग्जांपल है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अगर कोई सेटिस्फाइड हो जाए उसके बाद तो सम एकदम इजी हो जाता है, राइट। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, ओके, वन मोर एग्जांपल। हमारे पास ये इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। बताओ ये सम हम लोग कैसे सॉल्व करें। ये तो ऐसे दिया है और देखने जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ये मतलब होमोजीनियस भी नहीं होता, राइट। अगर हम लोग टर्म नॉन होमोजीनियस की है तो भी हम लोग कौन सा स्टेप्स अप्लाई करें कि हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी हम लोगों को क्या करना है, एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए या हम लोग x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस एच ले लें, पर वैसा भी नहीं है कि कोई कॉमन टर्म कैंसिल आउट हो जाए। सो ये फॉर्म हम लोग
देखते हैं नेक्स्ट मेथड, मतलब जो हमारी 4 मेथड है, सेपरेबल वेरिएबल, होमोजेनियस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल। ये लीनियर भी नहीं है, राइट। लीनियर का कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में सीखेंगे, राइट। सो अब ये हम लोग स्टार्ट करें। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेता हूँ, 2xy इंटू डी वाई, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। ओके, सो मैं रीराइटिंग दिस इक्वेशंस। सो वैल्यूज क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, सो ये इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, ये हुआ हमारा m और ये हुआ हमारा n टर्म, राइट। सो फर्स्ट चेक डेल m अपन डेल y। सो विद रिस्पेक्ट टू y करूँ तो मेरे पास कौन सी टर्म रहेगी, खाली -2y, कि ये दोनों 0 हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू y है तो। और डेल n अपन डेल x करूँ तो मेरे पास क्या रहेगा, -2y। सो दैट मीन्स डेल m अपन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपन डेल x। कंडीशन सेटिस्फाइड, अप्लाई द फॉर्मूला, y इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म इन n which are independent of x into dy is equal to c। सो m की कौन सी टर्म है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस टर्म इन n विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x। कोई है, नहीं है, कोई भी नहीं है, राइट। ये इक्वेशंस के अंदर, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, हाँ, ये इक्वेशंस के अंदर टर्म इन n विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x है, कोई मल्टीप्लीकेशन में है तो कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x इंडिपेंडेंट हो, राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ x हो। सो नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी, क्योंकि कोई है ही नहीं तो 0 ही लिखना पड़ेगा। अब बस इंटीग्रेशन करो, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। आ गया हमारा इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपन 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। देखा, काफी इजी है। होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी और ये मेथड भी समझ में आएगी, राइट। काफी इजी मेथड है, आप प्रैक्टिस करो, इजीली आपको भी आ जाएगी, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।